Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. Today's topics are the biggest contract so far awarded to Trump's preferred construction company. Apple and Google release coronavirus contact tracing technology for public health mobile apps. Is second stimulus check package on cards. Financial updates and much more. Let's start with news in brief. New coronavirus cases across the world jumped by the most ever in a single day, World Health Organization says. 2 Michigan dams breached, thousands evacuated amidst devastating flood. About 11,000 people in central Michigan were told to evacuate their homes after rapidly rising water overwhelmed dams, creating what the National Weather Service called a life-threatening situation. All 50 US states are at least partially reopened, even though at least 17 of them had recorded a clear upward trend of average new daily cases over the prior week. Connecticut, the last state to reopen, began allowing consumers to dine in at restaurants with outdoor seating today, and some shops also began reopening. That move came a day after New York Governor Andrew Cuomo said the outbreak is back down to where it started. Brazil has recorded a number of coronavirus deaths as the pandemic that has swept across the world begins to hit Latin America with its full force. Health officials in Brazil have reported 1,179 new coronavirus deaths, the first time the daily toll exceeded 1,000. After Asia, Europe and North America, Latin America has seen coronavirus infections surge in recent days and now accounts for about 580,000 of the world's nearly 5 million confirmed cases. Brazil has been hardest hit in the region, rising to the third highest number of cases in the world, as Peru, Mexico, Chile also see steady increases in infections. Birth rates in the United States have dropped for the 5th year in a row, reaching a new low for the past 35 years, according to a report from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Johnson & Johnson has announced that it would stop selling its talc-based Johnson's baby powder in the United States and Canada, saying it was a part of a broad reassessment of its consumer product portfolio prompted by the coronavirus pandemic. Johnson & Johnson faces more than 16,000 lawsuits from consumers claiming its talc products, including the Johnson's baby powder, caused cancer. The lawsuits allege that the company's talc products have been contaminated with asbestos, a known carcinogen. Johnson & Johnson has consistently defended the safety of its talc products and said it remains confident in their safety. प्रेसिडेंट ट्रंप का सिग्नेचर प्रॉमिस क्या था उनकी इलेक्शन पिच में? सिग्नेचर प्रॉमिस था दैट ही विल बिल्ड अ वॉल. तो ये इनका स्लोगन था. उन्होंने कहा था कि ही विल बिल्ड अ वॉल एंड मेक्सिको विल पे फॉर इट. जो सेकंड पार्ट है उसकी तो धज्जियां उड़ गई. मेक्सिको इज नॉट पेइंग फॉर द वॉल, मगर वॉल अभी बन रही है. और इसमें एक चौंका देने वाली खबर ये आई है कि वॉल बनाने के लिए अभी तक का सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया गया है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप फेवर करते हैं. तो $1.3 बिलियन का बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है एक नॉर्थ डकोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, which is often lauded by President Trump. और इसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं की गई, कुछ ये चीज पब्लिक नहीं की गई, और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस पर काफी सारी उंगलियां उठ रही हैं. ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप वॉल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं जब देश में तबाही मची हुई है. 93,000 people have died so far in America. The numbers are rising. मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने इलेक्शन प्रोमिसेस की तरफ. अब ये कंपनी का नाम है फिशर सैंड एंड ग्रेवल. इन्होंने विन कर लिया है, नॉर्थ डकोटा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है. $1.3 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बनेगी 42 माइल्स ऑफ वॉल और सदर्न एरिजोना के रगेड माउंटेन्स में वॉल ये बनाई जाएगी. अब गौरतलब ये है कि इस कंपनी को पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था $400 मिलियन का 31 माइल की वॉल बनाने के लिए, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी अंडर स्क्रूटनी है.
डिफेंस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल की स्क्रूटनी में है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि इम्प्रॉपर व्हाइट हाउस इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस वाज सीन। तो व्हाइट हाउस का इम्प्रॉपर पहले ही इन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंस है, और उसके बावजूद ये चल रही है अभी स्क्रूटनी, ये कंप्लीट नहीं हुई और इनको अवार्ड कर दिया गया है द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। रिप्रेजेंटेटिव बेनी थॉमसन जो मिसिसिपी से हैं, चेयरमैन ऑफ द हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी, ही इज वेरी वोकल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल का ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है कंट्री में, इतना बड़ा पेंडेमिक है, or it speaks volumes to the administration's lack of transparency that they didn't announce this award, the largest ever. And we continue to learn about contracts to companies without a proven track record from the media. तो पब्लिकली नहीं बताया गया और वो कंपनी अभी भी स्क्रूटनी से है। क्या पता चलता है इससे कि अंदर की क्या सांठगांठ है, क्योंकि छुपाने की कोशिश अगर की जा रही है किसी चीज को, क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो अभी पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट नहीं है। सारी कंट्री जो है उनका फोकस है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, किस तरह का इनका रिस्पॉन्स रहा है। और ऐसे में अगर वो बता देंगे कि सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है इतना ज्यादा दे दिया गया है बॉर्डर वॉल के लिए, तो क्या रिएक्शन होगा? शायद इसीलिए जो चीजें हैं उनको छुपाकर रखा जा रहा है। अब जो कंपनी के सीईओ हैं टॉमी फिशर, उन्होंने किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया? उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस की केबल टीवी पर, उनके रिपब्लिकन एलाइज को डोनेट किया, उनके इनर सर्कल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाई। तो उनका एंथुजियास्टिक सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, उनका अनकन्वेंशनल प्रमोशनल एफर्ट जो थे, उनको बना दिया एक फेवरेट अमंग्स प्रेसिडेंट ट्रम्प्स आर्डेंट सपोर्टर्स। उन्होंने उनकी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन की इलेक्शन कैंपेन के लिए सेनेटर केविन क्रेमर, रिपब्लिकन फ्रॉम नॉर्थ डेकोटा, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक बहुत प्रिय मित्र हैं। सो ही इज अ क्लोज एलाई, एंड क्रेमर ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को इन्फ्लुएंस किया कि फिशर को हायर किया जाए। And according to reports, Fisher has paid lobbying firm Odney more than $100,000 since 2017 while trying to secure border wall contracts. तो ये जो नॉर्थ डेकोटा बेस्ड ऑडनी है, they also worked for Kramer during the 2018 Senate run. While bidding on government border wall contracts, Fisher has built border barriers on private land for activist group We Built the Wall. And in some cases he was purchasing the land himself. तो देखिए ये सारी उन्होंने धीरे धीरे किस तरह से चीजें की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के इनर सर्कल को इन्फ्लुएंस किया, और जो सेनेटर क्रेमर है उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने फंडिंग करी, और किस तरह से जो प्राइवेट लैंड पर लोग काम कर रहे हैं, वी बिल्ड द वॉल, वहां पर आप परचेज कर लैंड उन्होंने काम किया। तो ऑल दिस टाइज अप टुगेदर कि किस तरह इन्फ्लुएंस किया गया कि उनको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे बड़ा है, मगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखे जाएं तो और कंपनीज को भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। उनमें से जो है साउथ वेस्ट वैली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग जायंट कीविड, उनको मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं, जो टोटल करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा उसमें अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ जहाँ फिशर कंपनी काम करेगी, ये वो सेक्शन है बॉर्डर का नगेलिस एरिजोना और ब्यूनिस एरिस नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज के बीच में। ये एरिया जो है एक्टिव स्मगलिंग कॉरिडोर है, और इस पोर्शन में आता है ईस्ट ऑफ नगेलिस में सेंटा क्रूज रिवर आती है जो बॉर्डर को ट्रेवर्स करती है। तो ये वाटर क्रॉसिंग है, यहाँ पर स्पेशल स्टॉर्म गेट्स लगाए जाते हैं जिनको खोला जाता है समर में ताकि स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैश फ्लड से गिर ना जाए। तो इट्स अ डिफिकल्ट टेरेन टू टैकल। एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस सेक्शन वॉल बाय फिशर सैंड एंड ग्रेवल विल बी मोर देन $30 million per mile. So $30 million per mile जो है इस एवरेज कॉस्ट होगी कंस्ट्रक्शन की, और दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव देन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द बॉर्डर वॉल। अब प्राइस टैग जो है of building the barrier ballooned because President Trump wanted the barrier to be painted black, and that cost is estimated to be about $1.2 million per mile. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा कि काले रंग की जो है उसको पेंट कर दीजिए दीवार को। क्यों? वॉल को डार्क कलर उन्होंने कहा कि ज्यादा सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा, और अगर कोई जंप करना चाहेगा बॉर्डर वॉल को तो उसके हाथ जल जाएंगे जब वो फेंस को क्लाइम करने की कोशिश करेंगे।
तो उनका मतलब है जो इलीगल माइग्रेंट्स अगर चाहेंगे कि वो बॉर्डर वॉल को क्रॉस कर लें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इंजीनियर्स ने ये कहा है कि ब्लैक पेंट जो है उससे लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये क्लेम है कि हाथ जल जाएंगे, ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी, तो इंजीनियर्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10% से कम फर्क पड़ेगा मेटल की एबिलिटी टू रिटेन। और हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की साइंस की नॉलेज कितनी ज्यादा है। अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का जो है उनका कांड हर जगह मीडिया में उछाला जा रहा है, हर जगह उसकी तहकीकात हो रही है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसी बात कर दी। अब ये वाली बात अभी उठकर नहीं आई है क्योंकि ये मिस्टीरियसली इन्होंने दबाकर रखी हुई हैं बातें। तो ये उनके कहने पर कॉस्ट बढ़ा दी गई है, $1.2 मिलियन पर माइल की कॉस्ट कर दी गई है। अब जो फिशर कंपनी है उन्होंने मार्केटिंग पुश तो करनी थी। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी जो है वो बैरियर फास्टर बनाएगी विद लेस मनी एंड दे विल यूज अ सिग्नेचर टेक्निक, जिसमें कुछ तरह की स्पेशल उन्होंने कन्वेंशनल ब्रेसिंग मेथड जो है उनको नहीं यूज करेंगे, कुछ स्टील बोलार्ड्स यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर फिशर सैंड एंड ग्रेवल कंपनी, उसके खिलाफ बहुत सारे एनवायरमेंटल टैक्स वर्कप्लेस वायलेशन है विच डेट बैक टू 2000। तो मतलब उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है। और जो भी चीजें उन्होंने करी हैं तो उससे तो लग रहा है ना कि वो यूज कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस टू गेन एडवांटेज, टू गेन द द कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रम्प की ये री इलेक्शन पिच में बहुत मेजर चीज है कि वॉल बनेगी। उन्होंने कहा था 500 मील की वॉल बनेगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। अभी तक 187 माइल्स ऑफ वॉल हैज बीन कंप्लीटेड। अब टेक्सास बॉर्डर जो है वो ज्यादातर अनफेंस्ड है बिकॉज ऑफ ट्रीटी प्रोविजंस, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, लिटिगेशन एंड फ्लड पेन्स। और फेंसिंग जो है वो इजियर है न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया में, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है 60 फुट वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड एडजेसेंट टू द बॉर्डर। और बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको स्पैन्स नियरली 2000 माइल। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बना रहे हैं बैरियर स्ट्रक्चर, उनको हाई फाई बना रहे हैं। वहां पर इस तरह से किया जा रहा है कि एनफोर्समेंट जोन में लाइटिंग, कैमरा, सेंसर, इंप्रूव्ड रोड्स होंगी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एलोकेट किए थे मोर देन $15 बिलियन फॉर द प्रोजेक्ट। उसमें से ओनली 1/3 अराउंड $5 बिलियन हैज बीन एप्रोप्रिएटेड बाय लॉ मेकर्स। और व्हाइट हाउस ने बाकी फंड जो है मिलिट्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, काउंटर नारकोटिक्स प्रोग्राम से डाइवर्ट कर बॉर्डर वॉल की तरफ जो है वो एलोकेट कर दिए। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अपनी रैलीज तो आजकल नहीं कर पा रहे, मगर जब भी वो रैलीज करेंगे वो लोगों को बताएंगे कि बॉर्डर वॉल पर उनका काम चल रहा है। चाहे कंट्री में इतनी ज्यादा तबाही मच रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, मगर वो तो अपनी इलेक्शन पर फोकस्ड है ना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका, रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। Is the second stimulus check package on cards। अब कोरोना वायरस एड रिलीफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट, जिसको केयर्स एक्ट कहा जाता है, वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस बिल है मॉडर्न हिस्ट्री में। 27 मार्च को इट वाज साइंड इनटू लॉ and it's more than double the stimulus act passed in 2019 during the financial crisis। अब CARES के अंडर millions of eligible individual adult Americans received a payment of $1,200। तो $1,200 के चेक बहुत सारे अमेरिकन को मिल चुके हैं, बाकियों को मिलने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है उसके मुताबिक एवरेज अमेरिकन स्पेंड करता है $660 a month on food एंड अराउंड 1700 ऑन हाउसिंग। तो जो $1,200 पर एडल्ट का चेक है वो कहा जा रहा है कि इट इज नॉट एनफ फॉर द स्केल ऑफ क्राइसिस वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। और काफियों को मिल चुका, काफियों को मिलने वाला है। पीपल हु हैव डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन ऑन IRS फाइल गॉट इट अर्लियर। IRS की कैपेसिटी है 5 मिलियन चेक एक हफ्ते में भेजने की, और अभी काफी हफ्ते लगेंगे कि सब अमेरिकन को जब तक ये फंड मिल जाएगा। अब बहुत सारा कंसेंसस है दोनों मेंबर्स में कि फर्स्ट स्टिमुलस चेक इनफ नहीं है एंड वी नीड टू डू समथिंग मोर। डेमोक्रेट्स ने पिछले हफ्ते पास किया है हेल्थ एंड इकोनॉमिक रिकवरी ओमनिबस इमरजेंसी सोल्यूशन एक्ट, जिसको हीरोज एक्ट कहा जाता है। अब इसमें $3 ट्रिलियन का प्रोविजन है रिलीफ के लिए, और इससे एडिशनल $1,200 पेमेंट पर फैमिली मिलेगी विद मैक्सिमम ऑफ 6,000। बिल जो है अभी ये हाउस में पास हुआ है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने पास किया है, अभी रिपब्लिकन मेजोरिटी वाले सेनेट में जाना है।
वहां पर मुश्किल हो जाएगी। और फाइनली अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचा, उन्होंने कहा मैंने तो वीटो कर ही देना है, तो अभी नहीं पता कि इस हीरोज जो एक्ट का क्या होगा, बिकॉज दिस प्रॉमिस इज $3 ट्रिलियन ऑफ रिलीफ, मगर वी डोंट नो किस हालात में इसको पास किया जाएगा। अब लॉ मेकर्स बहुत जगह कंसिडर कर रहे हैं कि मंथली स्टिमुलस पेमेंट्स दी जानी चाहिए। यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना, हु इज अ डेमोक्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड टिम रायन फ्रॉम ओहायो, they have introduced the emergency money for people act in the house। उनका प्रपोजल ये है कि जो लोग 130,000 से कम अर्न कर रहे हैं, उनको $2,000 की पेमेंट एवरी मंथ दी जानी चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 months with special rules for married couples and children। The monthly payment idea is gaining traction and with other politicians as well. More than 60 members of Congress signed an open letter earlier this month demanding recurring monthly payments to help taxpayers. There's a bunch of behind the scenes political drama that affects the details of another stimulus check. Congress has delayed its return from recess due to social distancing. अब ये क्लियर नहीं है कि कांग्रेस कब रिकन्वीन होगी और उसके बाद किस तरह से इवॉल्व होंगी, और सेकेंड जो स्टिमुलस चेक है वो कब आएगा। मगर होप्स हाई हैं, बिकॉज इवन द लॉ मेकर्स थिंक दैट पीपल नीड ऑल दिस मनी एंड इट्स अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, समथिंग वुड बी इन द ऑफिंग। Apple and Google have released coronavirus contact tracing technology for public health mobile apps। तो आज ये बड़ी उन्होंने लॉन्च की है। इस एफर्ट को कहा जा रहा है एक्सपोजर नोटिफिकेशन टूल एंड इट यूटिलाइजेस ब्लूटूथ रेडियोस विद इन द स्मार्टफोन। अब एप्पल ने ये टेक्नोलॉजी बनाकर दे दी है, बाकी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। अब एक्सपोजर नोटिफिकेशन क्या चीज है? इससे फोन अलर्ट्स आएंगे। जो इंसान एक्सपोज होगा कोविड-19 को, तो वो उनको फोन अलर्ट्स आ जाएंगे कि आपका एक्सपोजर हुआ है। अब गूगल और एप्पल ने बहुत क्लियरली कहा है दिस इज मेंट टू ऑगमेंट द एग्जिस्टिंग ट्रेसिंग एफर्ट्स, और वो यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ टू मेजर प्रॉक्सिमिटी। और बहुत बड़े प्राइवेसी कंसर्न थे कि किस तरह से डेटा यूज होगा, उसको मिसयूज ना किया जाए। तो ये क्लियरली कहा गया है कि नो जीपीएस और लोकेशन डेटा इज बीइंग यूज्ड एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज विल गवर्न। तो ये सारे क्राइटेरिया आज बताए गए हैं, ये सारे फीचर्स बताए गए हैं। स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यूज करना शुरू कर देंगी। 22 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कहा है कि वो यूज करना चाहेंगे, और 3 यूएस के स्टेट्स ने अभी बताया है कि दे आर गोइंग टू यूज अलाबामा, नॉर्थ डकोटा, साउथ कैरोलिना, तो ये यूज करेंगे। अब कंट्रीज में फ्रांस डजंट वांट टू यूज क्योंकि उनके कुछ एपीआई के इश्यूज हैं, वो नहीं ट्रस्ट कर रहे। एंड यूनाइटेड किंगडम अभी सोच रहे हैं कि वो यूज करेंगे टेक्नोलॉजी या नहीं। तो फ्रांस एंड यूके अभी उन्होंने मना किया। बाकी कंट्रीज, दिस इज द फर्स्ट फेज, दे माइट बी ऑन बोर्ड। और ये जो प्रोसेस है उससे कोरोना वायरस पेंडेमिक में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब आइडेंटिफाई होता है कि किसी को है पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, उनको इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की, उसके बाद वो बाकी लोगों को ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। जो शेल्टर इन प्लेस है दैट इज अ ब्लंट वेपन, कि सबको आपने कह दिया शेल्टर इन प्लेस, पर जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी तो लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो सेकंड फेज ये होगा कि पता लगाना कि कौन कौन से लोग इन्फेक्टेड हैं, और फिर जो लोग उनके सामने आ रहे हैं दे इन टच विद द इन्फेक्टेड पीपल, दे विल हैव टू आइसोलेट देमसेल्व्स। तो ये पहले बहुत सारी कंट्रीज ने यूज किए थे अपने अपने ऐप, मगर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एप्पल और गूगल के फोन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा था एप्पल को कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ वो निकाल दे, मगर एप्पल ने कहा था कि प्राइवेसी, बैटरी लाइफ इशू है, इस वजह से हम नहीं कर रहे। और इसीलिए अब उन्होंने ये नया मिलकर जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। जो एप्पल कस्टमर्स के पुराने फोन हैं आईफोन 6 से पहले, विच वर रिलीज बिफोर सितंबर 2015, वो नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल एक्सपोजर नोटिफिकेशन को, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट। तो इससे 16% ऑफ आईफोन यूजर जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे। तो जो नई टेक्नोलॉजी ये है, iOS और एंड्रॉयड वाले लोग, एप्पल और गूगल वाले जो हैं, सारे फोन्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल डाउनलोड कर लेगा देन दे कैन नो हु दे हैव कम इन कांटेक्ट विद। अब ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग वाकई ये ऐप डाउनलोड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पॉपुलेशन 60% से कम डाउनलोड करेगी तो फिर इसका फायदा नहीं होगा।
और दिस इज गोइंग टू हेल्प द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो पर्सन टू पर्सन होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट समथिंग टू हेल्प. ये इन इटसेल्फ कोई उपाय नहीं है और ये डिपेंड करेगा कि लोगों को प्राइवेसी के बहुत इशू है कि डेटा उनका लेकर फिर कहीं और ना इस्तेमाल किया जाए. मगर कहा यह जा रहा है एप्पल और गूगल की तरफ से कि वो ऐसा नहीं करेंगे और जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो इसको स्टॉप कर दिया जाएगा और पीरियोडिकली जो डेटा है उसको इरेज किया जाएगा. सो विद ऑल दिस कंसर्न बट स्टिल द ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेलकम स्टेप इन द वर्ल्ड बिकॉज द स्टेट्स एंड कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग इट to supplement the contract tracing. Time for our stock market news. S&P 500 closes at highest since early March as Facebook and Amazon hit records, Dow up 300 points. Stocks rose sharply today, building on this week's gains as traders increase bets of an economic recovery with more states easing stay-at-home orders. Tech shares led the gains. The Dow Jones Industrial Average closed 369 points higher or 1.5% at 24,575. The S&P 500 advanced 1.7% to 2,971, its highest closing level since March 6th. The Nasdaq Composite outperformed, rallying 2.1% to 9,375. The price of gold per ounce $1,748. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 51 paisa. Most active stocks today were Inovio Pharmaceutical, General Electric Company, Ford Motor Company, United Airlines Holdings, Norwegian Cruise Line Holdings, so INO, GE, FUAL, NCLH. Today, the advances put the major averages up by more than 3% for the week. It also put Nasdaq up 4.5% for 2020, adding to the index lead over the Dow and S&P 500 year to year. So this is adding to the index lead over the Dow and S&P 500 year to year. The tech-heavy index closed today's session less than 5% from its February record. Facebook shares rallied more than 6% to reach a record high. Amazon also hit an all-time high, closing higher by 2%. Facebook's gains came as investors cheered the company's new e-commerce Facebook shops, while Amazon continues to benefit from consumers ordering online. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.